Prime Minister Narendra Modi joined 20 other global leaders in China's northern port city of Tianjin for the traditional family photo at the Shanghai Cooperation Organization or SCO summit. Standing alongside China's President Xi Jinping, who first warmly received India's Prime Minister at the SCO venue. This after crucial bilateral talks between Modi and Xi Jinping earlier in the day. Prime Minister Modi arriving at the SCO venue, the summit venue in Tianjin in northern China. China's President Xi Jinping, after that, receiving Russia's President Vladimir Putin, Turkey's Recep Tayyip Erdogan and others, as Prime Minister Modi marked India's presence at this high-profile gathering. PM Modi has also invited China's President Xi Jinping to visit India next year for the BRICS summit. China welcomed more than 20 nations with ceremonial fanfare as the two-day summit in Tianjin got underway. This year's meet carries some added weight, reviewing 25 years of SCO's journey and unveiling a 10-year roadmap for the future. President Xi Jinping is chairing the proceedings, hosting the SCO summit for the 5th time. An all-important troika possibly forming at the SCO summit in China amidst trade tensions with the US. Russia, China and India coming together. Prime Minister Modi first holding a bilateral meeting even before the SCO summit, and then eventually landing up at the SCO summit venue in Tianjin. Shortly after that, Russia's President Vladimir Putin too joined Prime Minister Modi and over 20 other world leaders for the family photo op of the SCO summit. Prime Minister Modi is scheduled to hold a bilateral meeting with Russia's President Vladimir Putin as well tomorrow after the conclusion of the SCO summit. Meanwhile, PM Modi today shared on social media platform X that he met Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli on the sidelines of the SCO summit in Tianjin. Calling the ties between India and Nepal deep-rooted and very special, PM Modi said he was delighted to meet his Nepali counterpart. PM Modi also met Maldives' President Mohammad Muizzu on the sidelines of the SCO summit. PM Modi said that India's developmental cooperation with the Maldives continues to be greatly beneficial for the people of both nations. Prime Minister Modi also meeting Egypt's Prime Minister Mustafa Madbouli. Prime Minister Modi fondly recalled his earlier visit to Egypt and said that the India-Egypt friendship is scaling newer heights of progress. So the SCO summit, which is being chaired by China for the year 2025 getting underway, China has called it one of the most important diplomatic events of the year 2025. We have my colleague Manish Jha joining us live straight from Tianjin with the latest. Manish Jha जी, बताइए ये सबसे महत्वपूर्ण समिट हो रहा है तियानजिन में टैरिफ थ्रेट के समय पर इंडिया, चाइना और रशिया सब एक जुड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कृष्णा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एससीओ के इस सम्मेलन की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ गई है
क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आप नासमझी वाले फैसले कहें या बेवकूफ़ी वाले फैसले कहें, लेकिन टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज ये गया कि इससे भारत नाराज होकर रूस और चीन के गठबंधन के पाले में ना चला जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुई, तो उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक शब्दों में चीन के राष्ट्रपति से एक बात कही कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखेगा। और इस दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि भारत अगर किसी दूसरे मुल्क से कोई संबंध रखता है तो उसे तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था, ये मैसेज चीन के लिए भी था, और ये मैसेज उन तमाम देशों के लिए था जो सवाल करते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में वो उनके साथ क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो एक वेस्टर्न स्टाइल है कि आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी, भारत इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत के दरमियान ये इंडिकेट कर दिया था। लेकिन हाँ, एससीओ का ये मंच बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, खास करके तब जबकि ज़्यादातर इसमें से जो मुल्क हैं वो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ थे, और संजोग से एक ऐसा माहौल बना है जब भारत भी अभी अमेरिका से नाराज है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चीन के राष्ट्रपति से मिले, और फिर अभी जब एससीओ सम्मेलन का औपचारिक तौर पर प्रारंभ हुआ तो उस समय फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और उनकी पत्नी ने रिसीव किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जो एससीओ के दूसरे और मेंबर कंट्री हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों से भी, कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात के फोटोग्राफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें मालदीव के राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को प्रधानमंत्री ने जन्मदिन की भी बधाई दी क्योंकि कल उनका जन्मदिन था। तो ये सारी भेंट मुलाकात चल रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर मौजूद है। कल प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी बायलैटरल मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर जो एससीओ का कल जो बैठक होगा, जो मेन बैठक होगा, उसमें फिर भारत अपना पक्ष रखेगा। देखिए, एससीओ में कोई भी डिसीजन सर्वसम्मति से लिया जाता है, लेकिन बात वही आती है कि एससीओ को बनाया ही गया था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री के साथ ही वो मकसद पूरी तरह से फुस हो गया। ये बात तो हम सब जान ही रहे हैं। हाँ, ये खबर है जो न्यूज़ 9 के सोर्सेस के पास ये खबर है कि कल जब तियानजिन डिक्लेरेशन होगा, यानी कि एससीओ की मीटिंग के बाद जो चीन के तियानजिन शहर में जहाँ पर ये एससीओ की मीटिंग हो रही है, यहाँ पर जब डिक्लेरेशन होगा तो उसमें अगले 10 वर्षों तक कैसे सभी सदस्य देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है सो एक आप कहें कि एक कॉपी इसकी निकलेगी। लेकिन बात तो फिर वही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे सहयोग बढ़े। सवाल ये है, भारत और चीन के बीच भी सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन सीमा विवाद पर अगर चीन पर दोबारा से कैसे ट्रस्ट किया जाए। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनपिंग के होम टाउन श्यामन आए थे, उस समय डोकलाम विवाद हुआ था, और फिर 2020 में जब गलवान का मुद्दा हुआ तो 5 साल तक बातचीत नहीं हुई। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का जिक्र किया कि कजान में जो हमारी मीटिंग हुई थी उसका ये कंटिन्यूएशन मीटिंग है, यानी कि बातचीत चलती रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के भी ओपनिंग स्टेटमेंट में कृष्णा आपने गौर किया होगा कि उनकी जो दूसरी लाइन थी वो इसी बात को लेकर थी कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट, यानी कि वहां से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की बात का उन्होंने जिक्र किया था। तो इन रिश्तों के बीच में एससीओ का समिट हो रहा है, ठीक इसी जगह पर जहां पर अभी न्यूज़ 9 की टीम मौजूद है, और यहां से हम लगातार अपडेट दे भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में फिर एक ही बात है कि पूरी दुनिया की नज़र इसलिए भारत पर है क्योंकि दुनिया ये देखना चाहती है कि एक ऐसे वक्त में जब एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट एक फोरम तैयार हो रहा था, भारत के पास मौका था, लेकिन ये भारत ने डिसाइड किया कि हम एंटी वेस्ट नाम के किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, हम एससीओ के साथ रहेंगे क्योंकि हम उसके मेंबर हैं, हम ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन साथ ही साथ भारत के जो दूसरे मुल्कों से, अमेरिका या पश्चिमी देशों से संपर्क है। क्या है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी हैं, 4 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन भारत के दूसरे देशों के साथ भी जो संबंध है वो बरकरार रहेंगे। मुझे लगता है ओवरऑल आज दिन भर लगातार यहाँ रहकर तियानजिन से मुझे ये सारी बातें समझ में आ रही है। कृष्णा, ओवर टू यू। Manish Jha, they are joining us with all the latest from Tianjin in China. Manish Jha जी, ये कहा जाएगा कि ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है
अगर देखा जाए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ता है और भारत और रूस के बीच में जो रिश्ता है वो पुरानी रिश्ता है, जो आज उसका काफ़ी बूस्ट दिया जाएगा। खास करके यूएस और चाइना के बीच में जो रिश्ता है वो नीचे से नीचे गया, और यूएस और रशिया और यूएस और इंडिया के भी इस वक्त पर ये जो सम्मेलन है ऐतिहासिक सम्मेलन है। और इसके बाद जब एससीओ समिट खत्म होगा उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी एक बायलैटरल मीटिंग के लिए बैठेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कल जब एससीओ सम्मेलन की बैठक होगी और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी एक द्विपक्षीय बैठक यहाँ पर होगी। और चूंकि राष्ट्रपति पुतिन इसी साल भारत आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उससे पहले दोनों नेताओं की ये मीटिंग और खास होती जा रही है। अभी एक मंच पर यहाँ पर राष्ट्रपति पुतिन भी थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे और बाकी सभी सदस्य देश थे, जब एससीओ के सभी नेताओं का जो एक ग्रुप फोटो किया जा रहा था। उसकी तस्वीरें हमारे दर्शक देख ही चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मीटिंग होगी वो एक कंटिन्यूएशन होगा कि रूस और भारत के बीच जो डायलॉग है वो कैसे लगातार बना हुआ है। लेकिन हाँ, देखिए, ये बात सही है कि भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत और चीन के संबंध नॉर्मल किए जाने की कोशिश हो रही है। इसकी शुरुआत पिछले साल कजान में जब रूस में प्रधानमंत्री गए थे और ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तब चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन ये भी बात है कि चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी अमेरिका से हमारी तमाम शिकायतें हैं, लेकिन चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता है, ये भी बात सच है। और इस बात को पूरी दुनिया समझ भी पा रही है और भारत ने ये कन्वे भी किया है। लेकिन रूस और चीन की इच्छा थी, एससीओ बनाने के पीछे का मकसद यही था कि एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार करना। तो वो सालों से इस बात का इंतजार कर रहे थे और संजोग प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो मौका दे दिया जब उसने इंडिया को पुश किया। और एक ऑप्शन हमारे पास था कि हम रूस और चीन के उस गठबंधन में शामिल हो जाते जिसे नए वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर एंटी अमेरिका अलायंस का नाम दिया जा रहा है। लेकिन हम ऐसे किसी भी अलायंस के साथ नहीं होंगे। मैं कृष्णा आपको बता दूं कि मुझे याद है, मैंने खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो फरवरी में व्हाइट हाउस में थे और प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, तब मैंने एक सवाल किया था। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का पक्ष निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति का पक्षधर है और भारत उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएगा। ट्रंप के टैरिफ को लेकर टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजिंग के साथ अलायंस बन जाएंगे। वैसे देखा जाए तो एससीओ कोई मिलिट्री अलायंस है भी नहीं नाटो के तहत, लेकिन हाँ, इस बार एससीओ की बहुत अधिक चर्चा हो रही है। मुझे याद है जब 2017 में भारत इसका परमानेंट मेंबर बना था और अस्ताना कजाकिस्तान में जब पहली बार परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल हुए थे, मैं खुद भी वहाँ पर कवर कर रहा था। लेकिन पहली बार पिछले 20-25 साल के एससीओ के इतिहास में है कि इतनी चर्चा एससीओ को लेकर हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो उसका कारण ये नहीं है कि उसमें रूस के राष्ट्रपति आ रहे हैं या चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं। एससीओ की आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि भारत का रुख क्या होगा। क्या भारत अमेरिका को छोड़ या फिर अमेरिका से अभी जो टेंशन है उसकी वजह से रूस और चीन के अलायंस के साथ चला जाएगा। रूस और चीन चाहते यही है, लेकिन भारत इस मामले में किसी दबाव में नहीं आएगा। जब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया तो भारत रूस या फिर कहें कि चीन के किसी प्रलोभन में भी नहीं आएगा और कोई टेम्परेरी डिसीजन नहीं लेगा, कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन इस तरह का नहीं लेगा। बल्कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, और ये बात जब मैं आपको कह रहा हूँ तो ये मैं तब कह रहा हूँ जबकि कल से लेकर आज तक भारत सरकार के भी बहुत सारे सीनियर लेवल के जो लोग हैं उन सबसे मैंने बात की है, और यहाँ पर जो मौजूद जो दूसरे और देशों के लोग, डेलीगेशन के मेंबर, उन सबसे इंटरेक्ट करने के बाद ये मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल भारत को लेकर जो पूरी चर्चा बनी हुई है, चीन में भी जो उत्सुकता है, चाहे वो भारत और चीन के संबंधों को लेकर हो या एससीओ में भारत की भूमिका को लेकर हो, तो भारत को लेकर जो ये लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है। और इसी वजह से आज एससीओ की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत किसके तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा या ईस्ट की तरफ जाएगा, या फिर कहे कि किस गठबंधन के साथ जाएगा। तो भारत ने अपना कन्वे किया कि भारत को जहाँ जैसा अपना राष्ट्रीय हित दिखेगा उस हिसाब से भूमिका बनाएगा। बाकी किसी को बुरा लगे भला लगे वो मतलब उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन भारत का यही रुख रहेगा। कृष्णा।
Manish Jha there joining us on your screens now are visuals of the SCO family photo, which was clicked right before the summit got underway. मनीष झा जी ये भी बता दीजिए कि एक जो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो कब तक आएगा? बिल्कुल कृष्णा, देखिए जॉइंट स्टेटमेंट कल आने की उम्मीद है, जिसे तियानजिन डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। और एससीओ के इस जॉइंट डिक्लेरेशन में दरअसल चीन की तरफ से ये रखा गया था कि अगले 10 साल तक, चूंकि एससीओ के जो अभी परमानेंट मेंबर है वो 10 मेंबर हैं, तो चीन ने अगले 10 साल का एक विजन बताने की कोशिश की है कि कैसे सभी देशों के बीच में सहयोग बढ़ाया जाए और डेवलपमेंट को किया जाए। लेकिन फिर मौजूदा सवाल वही आता है कि भारत और पाकिस्तान कैसे सहयोग करे। ये सवाल शायद चीन अगर इसका जवाब दे दे तो पूरी दुनिया भी जानना चाहेगी। तो बहरहाल तियानजिन डिक्लेरेशन एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होगा, जिसमें सभी मेंबर कंट्री अगले 10 साल तक कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, इसकी चर्चा होगी। लेकिन इसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी और उसके तुरंत बाद फिर प्रधानमंत्री स्वदेश रवाना हो जाएंगे, जबकि इस सम्मेलन में आने वाले जो बाकी नेता हैं वो सब यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से बीजिंग चले जाएंगे, जहाँ पर 3 सितंबर को चीन मिलिट्री परेड का आयोजन कर रहा है। और उसके पीछे चीन का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में जो जापान के आक्रमण को रोककर, या फिर कि जापान से जो चीन बच पाया था, उसके विजय गाथा के तौर पर ये मिलिट्री परेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसको आजकल चीन में एक नया वर्ड दिया जा रहा है कि ये एंटी फासिज्म की जो लड़ाई है, जो चीन ने जीता था जापान के खिलाफ, उसको कैसे आगे जाना गया। एक बार अगेन फिर मतलब चीन और एंटी फासिज्म आप समझ ही सकते हैं। लेकिन बहरहाल चीन की तरफ से इस तरह के एजेंडा, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि यही समय है जब प्रेसिडेंट ट्रंप के अभी अलग थलग पड़े हैं, तो सही मौका है जब ग्लोबल लीडर के तौर पर चीन आए। और इसके लिए वो एससीओ मंच का इस्तेमाल बखूबी कर भी रहे हैं और उसको उसी रूप में प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। बस उनकी एक ही इच्छा अधूरी रह गई, वो चाह रहे थे कि भारत भी खुलकर साथ हो, लेकिन भारत अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेगा, न कि किसी दूसरे देश की इच्छा का पालन करेगा। जी मनीष झा जी, इस एससीओ समिट शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू से भी मिले थे। रहने दो, जितना जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एससीओ समिट में दरअसल जब फोटो सेरेमनी हो रही थी तो उस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर थे, मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ पर थे, उन सब से भी इनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह ये कहा कि जब वो चीन के राष्ट्रपति से मिले थे तो उन्होंने इस बात को लेकर एतराज़ जताया था कि भारत और चीन ने जो आपस में व्यापार के सभी मार्ग खोलने का फैसला किया, तो उसमें लिपुलेख भी है, जिस पर जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नेपाल की टेरिटरी है। हालांकि इसको लेकर भारत लगातार कह रहा है कि अगर सीमाओं को लेकर कोई कोई कंफ्यूजन है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी केपी शर्मा ओली ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, जो अनावश्यक था, लेकिन उन्होंने चीन में रहकर ये किया। बहरहाल यहाँ पर अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की मुलाकात के बाद भारत और नेपाल के बीच वो संवाद कायम हो सके, जिसमें लिपुलेख को लेकर जो नेपाल की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर किया जा सके। कृष्णा। Manish Jha there getting us all the latest updates from Tianjin, reporting live from the northern Chinese port city of Tianjin in China, where the SCO summit is underway. It kicked off shortly after that family group photo, for which more than 20 heads of state, including India's Prime Minister Narendra Modi, stood and posed. And the SCO summit kicking off after Prime Minister Modi's all-important bilateral meeting with China's President Xi Jinping, their first meeting in 5 years since the Galwan clashes, resetting the bilateral relationship between the two nations. And that will not be the only bilateral summit. Prime Minister Modi will also hold a bilateral meeting with Russia's President Vladimir Putin on the sidelines of the SCO summit on Monday, and those talks
come ahead of President Putin's scheduled visit to India in December this year and will serve as a stock-taking exercise of bilateral ties between India and Russia. Prime Minister Modi is expected to raise the issue of the Russia-Ukraine war and weigh in on the need for a ceasefire. US President Donald Trump's tariff of 50% on India is also something that's likely to come up in the discussions. Now, the timing of the meeting is significant. It comes even as India looks to diversify its trade partnerships following the 50% tariff imposed by the Trump administration of the US, out of which 25% is a penalty linked to India's continued purchase of discounted Russian oil. Washington claims that these oil imports fuel Russia's war machine. Meanwhile, in a parallel diplomatic outreach, Ukraine's President Volodymyr Zelensky spoke to India's Prime Minister Narendra Modi on Saturday, urging India to play a larger role in the efforts to end the war in Ukraine. Breaking news that's coming in, we understand that India's Prime Minister Narendra Modi is set to visit the state of Manipur in the second week of September. This will be Prime Minister Modi's first trip to the state since ethnic violence erupted between the Meitei and Kuki communities in the year 2023. Prime Minister Modi set to visit Manipur in the second week of September. That's the news that's breaking, and sources are telling us that the Prime Minister will travel to Imphal and Churachandpur, where he will meet people displaced by the violence. Bear in mind, Churachandpur is the epicenter of the violence, apart from Imphal. Prime Minister Modi is also expected to announce new infrastructure projects for the state of Manipur, and apart from that, inaugurate some ongoing works in the state as well. Sources are telling us that authorities are putting strict security measures in place, with the situation being closely monitored to ensure peace during the Prime Minister's visit. Since May 2023, ethnic clashes in Manipur have claimed more than 250 lives, with over 60,000 people still living in relief camps. President's rule was imposed in the state early this year and was extended in the month of August again. Officials say that security forces have so far recovered around 3,000 looted weapons, and that has brought some stability to the region. And now Prime Minister Narendra Modi is set to visit Manipur in the second week of September.